Hello everyone. All of you must be familiar about reflection symmetry. The concepts of reflection symmetry are quite simple, but usually children get confused when it comes to rotational symmetry. So let us try to clear the basic concepts related to rotational symmetry. Before learning about rotational symmetry, let us understand what is rotation. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक एक्सिस के अबाउट मूव कराते हैं, then this type of movement is called rotation. Let us take this rectangle and move it about its center point. Now this type of movement is called rotation, and the line about which we are doing this movement is called the axis of rotation. Now this axis of rotation can be anywhere. We can rotate it about any line, and this line will be the line of rotation. It can be along one of the vertex also. So this type of movement is called rotation, and the line about which this type of movement is taking place is called the line or axis of rotation. Now let us understand what is rotational symmetry. When we rotate an object or shape about the axis passing through its center point, and the object looks exactly the same in less than one complete rotation, then that shape is said to have a rotational symmetry. Now after one complete rotation, the object will always look the same as its original form as 0 degree and 360 degree. Both position coincide. But if between these two values there are places where the object looks exactly like its original form, only then we can say that that object or that shape has rotational symmetry. Let us understand rotational symmetry with the help of an activity. I have taken a card sheet जिस पर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं और इन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर पिन की हेल्प से एक होल कर दिया है. साथ ही हमने अलग अलग शेप्स लिए हैं जिनके सेंटर पॉइंट पर पिन से होल किया हुआ है. इसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट लगाई हुई है स्टेपलर की हेल्प से, जिससे हम इस पे जो भी ड्रॉ करें उसे मिटार कर नेक्स्ट शेप को ड्रॉ किया जा सके. तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल की रोटेशनल सिमेट्री को स्टडी करेंगे. तो इस पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट पे हम इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट रखेंगे और इसे पिन से इधर अटैच कर देंगे. अब हम इसकी आउटलाइन को इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे ओरिजिनल शेप को हम इसमें ड्रॉ करके देख सके कि रोटेट करने के बाद जो शेप आता है वो इस ओरिजिनल शेप से कोइंसाइड करता है या नहीं करता है. नाउ अब इस शेप में हम यहां पर एक पॉइंट बना रहे हैं जिससे हम ये पहचान सके कि हमारा 360 डिग्री रोटेशन कब कंप्लीट हुआ. स्टार्टिंग पॉइंट में ये यहां इस राइट कॉर्नर पे है और एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये अगेन इसी राइट कॉर्नर पे आ जाएगा. नाउ इस कंप्लीट रोटेशन में लेट अस काउंट कि कितनी बार ये फिगर अपने शेप को कोइंसाइड कर रहा है. अभी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जब ये अपने ओरिजिनल शेप से कोइंसाइड कर रहा है. नाउ नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, और यहां पर फिर से कर रहा है. एंड यू कैन सी कि ये डॉट वापस इधर आ गया. दैट मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन हो गया है. और इस कंप्लीट रोटेशन में देयर आर टू पोजीशंस जब ये रेक्टेंगल अपने ओरिजिनल शेप से कोइंसाइड कर रहा था. दैट मीन्स उसको पूरी तरह से कवर कर रहा था. The number of times the figure looks exactly as the original figure is called the order of rotational symmetry. तो इस रेक्टेंगल का order of rotational symmetry 2 है, because एक complete rotation में 2 times ये अपनी original position जैसा दिखता है. And the minimum angle through which the figure needs to be rotated to look the same is called as the angle of rotation. तो इस रेक्टेंगल का एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री है, क्योंकि मिनिमम 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को कोइंसाइड कर रहा था. यू कैन सी इट अगेन. ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये 90 डिग्री रोटेशन है, अभी ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है. एंड वन मोर 90 डिग्री रोटेशन जिससे टोटल रोटेशन 180 डिग्री हो गया. एंड नाउ इट इज कोइंसाइडिंग इट्स ओरिजिनल शेप. तो मिनिमम 180 डिग्री का रोटेशन रिक्वायर्ड है for this to look like its original shape, original position. So इसका angle of rotation है 180 degree and order of rotational symmetry है 2. We can check
order of rotational symmetry for other figures also. Now let us check for a triangle. This is an equilateral triangle. Let us mark a dot here. एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये डॉट वाला एंड वापस यहीं आ जाएगा. So let us see, before rotating, let us mark its outline. Now let us see कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार ये अपने इस आउटलाइन को कवर करता है. 1 times, 2 times and 3 times. और ये डॉट वापस इधर आ गया है. दैट मीन्स 1 कंप्लीट रोटेशन इज डन. और इसमें 3 ऐसी पोजीशंस आ रही हैं जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नजर आ रहा है. सो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस इज 3. लेट अस चेक फॉर सम अदर शेप. This is a regular pentagon. सो एक कंप्लीट रोटेशन में 5 टाइम्स ये ओरिजिनल शेप जैसा नजर आ रहा है. फॉर अ स्क्वायर. तो एक कंप्लीट रोटेशन में 4 टाइम्स ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा नजर आ रहा है. लेट अस चेक फॉर अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं. उसमें 1 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है. लेट अस चेक कि क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. ये डॉट वापस यहीं आ गया. दैट मीन्स 1 कंप्लीट रोटेशन इज डन. और इस कंप्लीट रोटेशन में सिर्फ फाइनल पोजीशन पे ही ये अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिख रहा था. सो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है. दैट मीन्स दिस फिगर डज नॉट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री. क्योंकि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 तो हर शेप की होगी. आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन कोई भी फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ ही जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होने का मतलब है कि उसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. लेट अस चेक फॉर अ स्केलीन ट्राइंगल ऑल्सो. उसमें कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होती है. क्या रोटेशनल सिमेट्री होती है? लेट अस चेक. सो 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया और सिर्फ फाइनल पोजीशन पे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख रहा था. सो दिस फिगर ऑल्सो हैज नो रोटेशनल सिमेट्री. लेट अस चेक फॉर अ सर्कल ऑल्सो.
नाउ सर्कल को हम कितना भी रोटेट कराएं, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा ही नजर आएगा. सो यू कैन से कि सर्कल में इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री है. दैट मीन्स इसको कितना भी रोटेशन कराएं, दिस विल लुक एग्जैक्टली द सेम. हर पोजीशन पे ये अपने ओरिजिनल शेप जैसा ही नजर आ रहा है, अपने ओरिजिनल शेप को कोइंसाइड कर रहा है. सो आई होप इस एक्टिविटी की हेल्प से आपको रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है ये समझ में आ गया होगा. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रोटेशनल सिमेट्री एंड एंगल ऑफ रोटेशन. Order of rotational symmetry is 360 degree divided by angle of rotation, and angle of rotation is 360 degree divided by order of rotational symmetry. I hope you liked this video. For more such content, like, share and subscribe this channel. Thank you.